My dear friends, it's a joy for me to see you this morning. प्यारे दोस्तों, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। Today we're meditating on the promised verse which is in Genesis 17:20. आज हम मनन कर रहे हैं उत्पत्ति 17:20 के प्रतिज्ञा वचन पर। I will make him into a great nation. मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। This promise was given to Abraham. ये प्रतिज्ञा वचन अब्राहम को दिया गया था। What is a nation? देश क्या होता है? A nation is a country or all the people in the country. देश का मतलब होता है कि उस देश के सभी लोग। But God doesn't promise to make Abraham into a nation, but he promises to make him into a great nation. परमेश्वर ने अब्राहम को केवल एक देश बनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसे कहा कि मैं तुझे महान देश बनाने जा रहा हूँ। When God promises Abraham this, he didn't have any descendants. जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की तो उसकी कोई संतान नहीं थी, But still, God had given him this promise. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी थी। What would a great nation have? कि एक महान देश के पास क्या हो सकता है? It would have influence and impact to bless the countries around that nation. इसमें प्रभाव होता है कि दूसरे आसपास के जो देश हैं उनके लिए ये देश आशीष बन सके। It would have many possessions to have control over its territories. इसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है कि अपने प्रांत पर नियंत्रण करता चला जाए। It would operate in righteousness and justice, modeling over God's character. ये धार्मिकता में और न्याय में काम करता है, परमेश्वर के चरित्र में काम करता है, Following his law. उसकी व्यवस्था मानता है। And most importantly, it would have a large population. और सबसे जरूरी बात कि इसकी जनसंख्या बहुत होती है, Like the stars in the sky or the dust of the earth. आसमान के तारे या फिर भूमि की रेत के जैसे। But when God gave him this promise, Abraham did not have any descendants. जब परमेश्वर ने उसके साथ ये प्रतिज्ञा की थी तो अब्राहम की कोई संतान नहीं थी, He had no children. उसके कोई बच्चे नहीं थे। But then God blessed him with each one of these qualities of a great nation. फिर परमेश्वर ने महान देश की हर एक खासियत से उसे आशीष दी। Now when we look back on the life of Abraham, अब जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, we see that he had great influence हम ये देखते हैं कि उसका महान प्रभाव था, and impact. बड़ा असर था। He had a lot of possession. उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। He was righteous and he was just. वो बहुत धर्मी था और न्यायी था। He followed the commandments of the Lord. उसने प्रभु की आज्ञाओं को माना। And he was blessed with many descendants as the stars in the sky and the dust of the earth. आकाश के तारे और भूमि की रेत के समान उसका इतना बड़ा वंश हुआ। Why did God give him this great blessing of being a great nation? परमेश्वर ने उसे इतने बड़े महान देश होने की आशीष किस लिए दी थी? Because he was obedient and he did right in the eyes of the Lord. क्योंकि वो आज्ञाकारी था और परमेश्वर की दृष्टि में सही काम करता था। So not only Abraham, केवल अब्राहम ही नहीं, but his descendants were able to reap this blessing in their life. बल्कि उसका वंश भी इतनी सारी आशीषों को प्राप्त करने पाया। Generation after generation, those who put their trust in the Lord and obey the commandments of the Lord, पीढ़ी दर पीढ़ी जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया और उसकी आज्ञाओं को मानते चले गए, they all reap this blessing. उन सब ने ये आशीष पाई। They saw each one of these qualities come to pass in their life. उन्होंने इतनी सारी विशेषताओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। In the same way, God is blessing you with the same promise. इसी तरह से, इसी प्रतिज्ञा से परमेश्वर आपको आशीष देता He है। will bless you and make you a great nation. वो आपको आशीष देगा और महान देश बनाएगा। Make your descendants like the stars in the sky. आपके वंश को आकाश के तारों जैसा बनाएगा। Give you influence and impact to bless others. आपको इतने प्रभावी बनाएगा कि आप दूसरों के लिए आशीष To होंगे। live a righteous life एक धर्मी जीवन जीने के लिए, and follow the commandments of the Lord. ताकि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, Have possessions and prosperity. धन संपत्ति और संपन्नता पाएं। So today,
receive this blessing that God is placing upon your life. आज परमेश्वर आपके जीवन पर जो आशीष रख रहा है उसे पालें। He will make you a great nation. वो आपको एक महान देश बना देगा। Shall we thank God and pray? आइए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना Lord, we करें। thank you for this wonderful promise प्रभु इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद करते हैं that you will make your children a great nation. कि तू अपनी संतान को एक महान देश बनाएगा। Give them descendants like the stars in the sky and the dust of the earth. आकाश के तारे और भूमि की रेत के समान तू इन्हें वंश देगा। And give them influence and impact to bless others. और इन्हें प्रभाव और असर देगा कि दूसरों को आशीष दें, Live a righteous life. ताकि धर्मी जीवन जी पाएं। Follow your commandments and reflect your character. आपकी आज्ञाओं को मानकर आपके चरित्र को दर्शाएं And be prosperous and enjoy your blessings. और संपन्न होकर आपकी आशीषों का आनंद उठाएं। Bless them, Lord, and keep them as a testimony of your goodness. प्रभु इन्हें आशीष देकर अपनी भलाई की गवाही बनाए। We receive this blessing in your name. तेरे नाम से हम इस आशीष को पा लेते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगती हूँ। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आशीष दे। इस मौके को मिस ना करें। தவற விடாதீர்கள் ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. இது நஷ்டப்படுத்துறது। మిస్ చేయకండి. हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए। Your sorrow will turn into joy. बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. बिग बॉल वाज देयर। Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord, there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए। Precious Brother Gante Togung, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. बहुमूल्य भाई गांधी टुगुन, आपकी धन्यवाद की भेंटों के लिए धन्यवाद जो कि लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Psalm 112 and verse 3, wealth and riches are in your house, and righteousness shall endure forever. भजन 112 वचन 3 के अनुसार धन संपत्ति आपके घर में बनी रहेगी और धार्मिकता हमेशा बनी रहेगी। Lord, I pronounce this blessing upon dear brother Gante and his family. Let there be financial prosperity and the court case be cleared and let them have victory in Jesus' name very quickly, Lord. प्रभु, मैं इस आशीष की घोषणा करता हूँ हमारे भाई गांटे और इनके परिवार पर। इनके जीवन में आर्थिक संपन्नता हो और कोर्ट केस क्लियर हो जाए और ये बहुत ही जल्दी यीशु के नाम में विजय पाए। Bless all the 4 sons and 6 daughters. Protect them and prosper them in Jesus' name. इनके सभी 4 बेटे और 6 बेटियों को आशीष दीजिए और इन्हें संपन्न कीजिए यीशु के नाम में। Amen. God bless you. आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।